सर ये तो आपने लिख दिया लेकिन ये कैसे आया? बच्चा डू यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी 1 प्लस tan square x is equal to sec square x. What I have to do is I have to just take this one onto the right hand side, तो मेरे पास यही वाली चीज़ दोबारा से आ जाएगी. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. और टाइटल तो देख के आप समझ गए होंगे that what we are going to do today. So basically what we are going to do is we are going to start with integration first exercise. This is of grade 12th and let's get started. This exercise is very basic and सारे direct formulas इसके अंदर सारे यूज हो जाएंगे. बेसिकली आपको क्या डिफरेंस पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता कैसा है एंड you can say that with a lot of practice you will just master these concepts very clearly. Without wasting any time, let's get started and मेरे साथ solve करते रहना and do not look at the answers. I just appreciate that you just solve the answers, then play the video again and you can see कि answer सही है या नहीं. Alright, by watching this video कुछ समझ नहीं आएगा, you have to practice along with that. Alright, so let's get started. The very first question, that is question number 1, which is there in front of us, is integration of sine 2x with respect to x. All right class, in the previous classes what we have done, we have just revised the very basic integral formulas and differential formulas. तो sin x का differentiation या integration आप मुझे बता सकते हो? All right, integration of sin x was minus of cos x plus c. तो यही वाला फॉर्मूला वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ओवर हियर एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू जस्ट राइट इट, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ cos 2x एंड क्लास प्लीज नोट वन थिंग दैट इसके जो डिफरेंशिएशन है आपको इसको डिवाइड कर देना होगा. वेरी सिंपल इन फ्रंट ऑफ अस. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x? 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड दिस बाय 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस. Very easy, yes. So let's get started with the next question, and next question is going to be again very easy in front of us. So this is question number 2. Question number 2 is saying that integration of cos 3x dx. Whenever we are going to just do it, sir, cos का integration आपने बताया था, that was sin x. All right, just apply that thing. Integration of this is going to be sin 3x and 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ 3x was 3 plus c. इजी. दो क्वेश्चन जस्ट हमारे सामने हो चुके हैं एंड आई जस्ट लॉक द कैनवास सो दैट आगे प्रॉब्लम ना हो. ऑल राइट क्लास, दिस इज गोइंग टू बी अगेन वेरी इजी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x. Integration of e की power 2x dx. What is integration of e की power x and differentiation of e की power x? सर बताया तो था कि e की power x का differentiation integration e की power x ही होता है. All right, just apply it over here and it is going to be e की power 2x and 2x का differentiation क्या होता है? 2 plus c. Again a very simple answer in front of you. All right. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कह रहा है कि वेन एवर आई एम हैविंग इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ क्लास व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट ओवर हियर इज, आप इसमें क्या करोगे, इस वाले टर्म को कुछ भी ले लो टी, इसको आप इंटीग्रेट कर दो एंड इसके डिफरेंशिएशन से आप इसको डिवाइड कर देना. वेरी सिंपल इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ डू वी डू इट? सो इट इज गोइंग टू बी ए एक्स प्लस बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 and what is the differentiation of ax? It is going to be a plus c. सर कैसे किया मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो सर आप मुझे प्लीज बता सकते हो हाउ डू आई डू इट? इस वाले टर्म को आई हैव जस्ट कंसिडर्ड टू बी t, तो दिस इज t की पावर स्क्वायर dt. तो जब मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाता है t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और जब मैंने इसको किया तो द आंसर वॉज t क्यूब डिवाइडेड बाई 3. All right, this thing is clear. ठीक है, let's get started with the next question, and next question is here in front of us, that is question number 5. Question number 5 क्या कहता है? Let's see. Integration of sin 2x minus 4e की power 3x and dx. All right class. लाइक द वे डिफ्रेंसिएशन के अंदर हम इसको अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में कर लेते थे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर जस्ट गोइंग टू स्प्लिट देम अप एंड कर लेते हैं अलग से. सो इट इज गोइंग टू गिव अस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस
4 integration of e की power 3x dx. 4 was a constant and it was not having any x का term, that's why I've just written it outside the integral to avoid any kind of a confusion. All right, so sin 2x का इंटीग्रेशन सर आपने अभी भी तो कराया था. नाउ सी, ये सारे के सारे कंसेप्ट अब क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आपके पास आ जाएंगे. दैट्स वाई डूइंग एक्सरसाइजेज 7.1 एंड 7.2 आर मस्ट. इन एक्सरसाइजेस के बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे. ऑल राइट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्मैट एंड इसको मास्टर कर लेना एंड वी हैव हार्डली एनी क्वेश्चंस इन दीज एक्सरसाइजेज एज वेल एंड बहुत जल्दी से हो जाएंगे. अभी भी हमें पास 5-6 मिनट ही हुए हैं करते हुए. सो लेट गेट स्टार्टेड. सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस 2x, और इसके इंटीग्रेशन से हम डिफरेंशिएशन से हम वी आर गोइंग टू जस्ट डिवाइड इट. दिस इज 4 e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी कितना ईजी था, साइन 2x एंड ये सब हो गया हमारा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस. मैं भी स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. लेट्स ऐड वन अनदर स्क्रीन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx. ऑल राइट, जब हम इसको करेंगे सर आई कैन अगेन स्प्लिट देम अप बिकॉज बीच में प्लस का साइन है. और ऑल राइट, this is going to be integration. Beta 4 was a constant for me. I just write 4 outside. E की power 3x dx plus 1 e की power dx. Integration of dx. All right. तो जब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आएगा सर, we are just going to solve it. Now we are just pro at these questions. तो फर्स्ट वाला पार्ट मुझे कह रहा है 4 e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस बेटा दिस वाज अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, जो भी टर्म है हमारे पास जिसके हिसाब से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वही वाला टर्म हो जाए. दिस इज x प्लस सी. सिंपल. ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कह रहा है क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 माइट बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज जब आप आगे एक्सरसाइजेस कर लोगे यू विल बी थिंकिंग अट कि मैं कौन सी वाली प्रॉपर्टीज के अंदर यूज करूं. बट बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल आर गोइंग टू डू इज कि आप बेसिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करो, देन यू कैन मूव टू द कॉम्प्लिकेटेड वंस. तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस दिस इज 1 माइनस ऑन एक्स स्क्वायर dx. ऑल राइट, द वेरी बेसिक थिंग दैट आई कैन डू इज मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. इट विल बी वेरी इजी फॉर मी. लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक हाउ डू वी डू इट? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस वॉज dx. बच्चा प्लीज डू नॉट मिस एनी काइंड ऑफ स्टेप बिकॉज वी हैव स्टेप मार्किंग. ऑल राइट, नाउ दिस इज हैविंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. नेक्स्ट वाले स्टेप पे हम इसे क्या करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक देम अप. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है क्लास? आई हैव लर्न दैट एक्स की पावर n dx का इंटीग्रेशन इज एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 and I know that where n is not equal to minus 1. All right, so we are just going to integrate it and let's see what is the answer. This is going to be x cube upon 3 minus x plus c. I hope this question is clear to all of you. Yes, if yes, please अपने आप ही जहाँ पे भी बैठे हो please say this answer along with me. That is the answer. The answer is x cube upon 3 minus x plus c. All right, whenever you are going to just say and all these things are there in front of you in written, तो ये है ना जल्दी याद हो जाती हैं. All right, now we move on to the next question and the next question that we have is question number 8. Question number 8 and this question is saying that ax square plus bx plus c dx. Sir, I know that what I have to do. इसको जल्दी से आप बस अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दो एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ए बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स. सर मुझे पता था इसके अंदर एक्स का टर्म है तो दिस इज गोइंग टू बी ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस कोई भी टर्म ले लो ई. ऑल राइट, अब इसके अंदर या तो आप ऐसे टर्म ले लो या फिर आप इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट ले लो के या फिर कुछ भी, बट यू हैव टू स्पेसिफाई दैट ई इज अ कांस्टेंट.
ऑलराइट, ज़रूरी नहीं है सी ही कांस्टेंट लो, सी ही कांस्टेंट लो, वैसे इंटीग्रल के अंदर हम वी जस्ट यूज टू टेक सी एज अ कांस्टेंट, बट इन सब केसेस के अंदर जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो what you are going to do, just take another simple letter and just consider as a constant, and please specify on the right that this thing is a constant for me. All right, now move on to question number 9, and question number 9 is saying that uh, question number 9 is integral of 2x square plus e की power x dx. बच्चा now let's see that जब इंटीग्रेशन करते हैं तो this is going to be इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर ले लिया because it is a constant x square dx plus e की power x dx. सर x square का I am very much sure that it is going to be x cube upon 3 plus e की power x plus c. See, this question is very much easy and like these way हम इसको solve कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड जैसे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में वी जस्ट हैव टू हैव अ थिंकिंग प्रोसीजर, एंड उस थिंकिंग प्रोसीजर के अंदर क्या लगेगा, लेट्स हैव अ लुक. दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. ऑल राइट क्लास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर क्या हमें एक प्रॉपर्टी याद है, a plus b का होल स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. जस्ट everyone apply this property over here and we will have a bifurcated term once again so that we can just integrate it, and a very simple solution is going to be there in front of you. So this is going to be integral of, and इसके अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो so that just to minimize any kind of a confusion, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और जिस इसके अंदर माइनस का साइन था तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ये वाला प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसके अंदर माइनस ऑफ 2ab एंड a वाज 1 अपॉन this a was under root x and b was 1 upon under root x and square bracket close dx. All right, अगले वाले step में we just going to solve it and let's get started. Like what is the answer in front of us? Integration of x plus 1 upon x, और x से x कट जाएगा, this is going to be minus 2 and this is going to be dx, और इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लो तो this is going to be integration of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स. एक्स का होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2. 1 अपॉन एक्स सर याद करो, जल्दी से याद करो, 1 अपॉन एक्स क्या था, 1 अपॉन एक्स वॉज लॉग. ऑल राइट, प्लस लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस वाले के टर्म में मैंने क्या ले रखा है, मॉड ऑफ लॉग एक्स. ठीक है, दिस इज क्लियर. एंड बच्चा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड आई नो दैट आप सब इस पेस के साथ एडजस्ट हो गए होगे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डू इट very clearly and very effectively in front of you. This is going to be question number 11, and question number 11 कह रहा है integration of x cube plus 5x square minus 4 divided by x square dx. बच्चा इस वाले क्वेश्चन को करो, बट इफ यू आर गोइंग टू नोटिस फ्यू ऑफ द बेसिक थिंग कि सर नीचे एक्स स्क्वायर है, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड इट, सबके साथ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो बहुत इजीली टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर नीचे से ही कट जाएगा. ऑल राइट, तो एक्स स्क्वायर अगर इसके नीचे कर लेंगे तो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल. तो द वेरी बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ओवर हियर इज दिस ओनली. ऑल राइट बच्चा, तो आई जस्ट बाइफरकेट देम. मैंने लिखा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्लियर है सबको? ऑल राइट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं इसको. दिस इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा x डी एक्स प्लस 5 डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 4x की पावर माइनस 2 डी एक्स. ऑल राइट सर, ये सब तो आपने कर दिया, बट कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है इसके अंदर? बच्चा इस वाले केस के अंदर आप देखोगे दिस वाज x की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1. अगेन सेम है, आपको पता है कि आपने इंटीजर्स वगैरह पढ़ रखा है, माइनस प्लस आपको अच्छे से करना आता होगा. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट. तो आंसर दैट वी आर गोइंग टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी, क्या होगा जल्दी से देख लो.
This is going to be, I'll just change the color of the pencil. This is going to be x square upon 2 प्लस 5x माइनस 4 मैंने बाहर ले लिया, और अंदर वाला टर्म क्या होगा, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू सो दैट बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग एंड आई डोंट वांट यू टू लूज विद द कंसेप्ट. दिस इज गोइंग टू बी x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस सी, एंड जो हमारा आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस सी. ऑलराइट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ बच्चा देखो सर आपने ये वाले क्वेश्चंस तो करा दिए मुझे. अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12. सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट राइट इट विद द ब्लू. क्वेश्चन नंबर 12, and question number 12 is saying that sir, do the integration, this integration is to be done with x cube plus 3x plus 4 divided by under root of x dx. all right सर इसको भी कर दो. अंडर रूट ऑफ एक्स को कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स की पावर 1/2. ऑल राइट, तो इस वाले पार्ट को वी जस्ट गोइंग टू बाइफर्केट इट अगेन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स. ऑल राइट सर, ये तो हो गया, बट हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस? एंड जस्ट टू प्रोसीड विद दिस, ये वाला पार्ट हमारे लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 डी एक्स. इसके आगे भी आएगा डी एक्स. ऑल राइट, इफ दिस थिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ थोड़ा सा आगे, तो ये वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा. दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 7/2, राइट. और ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो क्लास. दिस इज गोइंग टू बी 1/2, एंड इस वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा तो दिस इज गोइंग, ये वाला आ जाएगा मेरे पास 3/2. कहाँ पे गया? ये वाला 1/2, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी सेम इन फ्रंट ऑफ अस. अगर इसको मैं देखूं तो दिस इज 1 माइनस 1/2, दिस 1/2, तो ये वाला आ जाएगा 3/2. लेट्स गेट स्टार्टेड कि हाउ डू वी डू इट. देखो ये हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5/2 एक्स की पावर 5. इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 एंड 5/2 प्लस 3. ये हो जाएगा, इसको अगर काट दोगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2, तो एक्स की पावर 3/2. एंड क्लास सिमिलरली इस वाले केस के अंदर थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू इंटीग्रेटेड. ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, पहले आप इसको सॉल्व कर लो. सी अभी मेरे पास एक तरह की कंफ्यूजन हुई थी कि मैं इस वाले टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग गया था. ऑल राइट, तो बेसिकली दिस थिंग कैन कम इन फ्रंट ऑफ यू, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं. वाई टू डू इट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अस? तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 5/2 डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 डी एक्स. अब क्लियर है? अब इसके बाद फॉर्मूला पुट कर दो, यू विल नेवर एवर बी कंफ्यूज्ड. तो 5/2 प्लस 1 कितना होता है? 7/2. तो अब ये हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7, और डिवाइडेड बाई 2 था तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 3/2, तो ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 ई की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी एक्स की पावर 1/2, दैट ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, और ये आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर हेयर. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड थोड़ा सा इसको एक बार कट करते हैं. तो क्या होता है मेरे पास, देखो दिस इज गोइंग टू बी 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी. ऑल राइट, दिस थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, यू जस्ट हैव टू पुट अप योर ब्रेन एंड यू जस्ट हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. थैंक गॉड ये वाली कंफ्यूजन आपके सामने ही दिख गई, सो दैट यू कैन अवॉइड इट इन द फ्यूचर. ऑल राइट क्लास, अगला वाला क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 is saying that integration of x cube minus x square
plus x minus 1 divided by x minus 1 dx. क्लास ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इजी येट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज करता है. ऑल राइट, बच्चे सोचेंगे सर इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं या क्या लगाएं, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं. बट इफ दे आर गोइंग टू जस्ट लुक एट द वेरी बेसिक पार्ट, सो एक बार देख लो यहाँ पे क्या करते हैं. सपोज इसके अंदर से मैं x कॉमन ले लेता हूँ पहली वाली टर्म में. तो अगर x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास जाता है x माइनस 1. इसके अंदर से प्लस 1 कॉमन ले लेता है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डी एक्स. ऑल राइट, x माइनस 1 फिर से कॉमन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डी एक्स. इफ यू आर एबल टू सी दैट, आई कैन जस्ट सिंपली कट दिस एंड दिस टर्म. ठीक है, बहुत इजीली कट आउट हो जाते हैं. एंड व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx, and this is going to give us integration of x square dx plus 1 into integration of dx. The answer is going to be x cube upon 3 plus x plus c. Clear to everyone? ठीक है, आई होप आप ये सारे के सारे आंसर्स मैच कर रहे होंगे बाय पॉजिंग द वीडियो. डू नॉट गो इन अ सिंगल गो कि भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड यू आर जस्ट. बच्चा प्लीज मेक श्योर दैट मैथमेटिक्स कभी देखने से तो कभी नहीं आएगी. ठीक है, हाउएवर दिस इज अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज, तो ये वाली आप चलो देख भी लो तो समझ आ जाएगी. बट in the later half, in the integration, bacha, what we have to do is you have to solve each and every questions, but you have to do it on yourself. कहीं पे भी solutions नहीं देखने, कहीं पे भी कुछ नहीं देखना, नहीं आ रहा तो छोड़ दो. Do it later, but do it yourself. All right, ठीक है. This is the very basic thing that all of you are going to do if you want to just proceed with very good conceptual knowledge and understanding of mathematics. All right, question number 14. Question number 14 is saying that integration of 1 minus x under root of x dx. सर इसके अंदर क्या करेंगे सर, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज द हार्म. ऑल राइट, whenever I'm just going to multiply it again, this is going to give me under root इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट एक्स. बच्चा हाउ डू वी डू इट, इंटीग्रेशन की इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई. ऑल राइट, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस दिस माइनस ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2. सर ये समझ नहीं आया कैसे आया. ऑल राइट, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आता है, एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1 अपॉन 2. वेन एवर वी हैव द बेस टू बी सेम एंड पावर्स टू बी डिफरेंट, what do we have, x की power 1 plus 1 upon 2. This is going to be the thing. I am going to just do this in an erasable form because I don't want all of you to be in a rentification wala form. All right, do not cram in front of us. So this is going to give us integration of x की power 1 upon 2 dx minus integration of x की power 3 upon 2 dx. बच्चा just now we have solved in question number 10. I hope that यही वाला क्वेश्चन था हमारे पास. इंटीग्रेशन करना बहुत इजी रह जाता है इसका. तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन नॉट इंटीग्रेशन. जब हम इसे करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस डिवाइड ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2. बच्चा मैं इस वाले पार्ट को जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ. तो व्हाट यू ऑल कैन डू इज, आप इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2. अगले वाले स्टेप पे आप क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3. क्योंकि ये नीचे था तो ये जाके ऊपर हो जाएगा. वही वाली चीज़ मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ. ऑल राइट, तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ एंड वाई वी आर प्रोसीडिंग. एंड आई बिलीव कि आप लोग क्लास 12th के बच्चे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आती होगी. ऑल राइट, so the final answer that we are going to have it in front of us is going to be 2 upon 3 x की power 3 upon 2 minus 2 upon 5 x की power 5 upon 2 plus c. Hope this thing is clear to each and every one of you who is studying right now. बच्चा again telling all of you, please pause the video and then only please solve these questions. All right, 2 मिनट लगेंगे, अच्छे से 2x की स्पीड पे कर लो. आई डोंट माइंड you all taking it on a 2x mode and just solving it. All right, question number, बस आवाज़ ही थोड़ी सी तेज हो जाएगी but it's okay. I know that all of you have to study and study purpose के लिए ही आए हो आप लोग यहाँ पे. This is going to be question number 15 in front of us. Question number 15 is saying that integrate under root x
3x² plus 2x plus 3 into dx। ऑलराइट क्लास, हाउ डू आई डू इट? सर जल्दी से ना मुझे एक चीज़ बता दो कि क्या करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन को सर सिंप्लीफाई कर दो एंड यू कैन डू इट इन फ्रंट ऑफ अस। सो दिस इज गोइंग टू बी, बच्चा सीधा देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप वहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 बाहर ले लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 2 यहाँ पे था, 1/2 ये था। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और अगर हम इसको आगे फॉर्मुलेट करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5/2, इसके आगे dx लगा देना बच्चों, ठीक है, हमेशा। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 ही होता है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। बच्चा डू नॉट लूज विद द स्टेप्स, we have step marking in the board examination as well, so what you have to do is do not lose with the steps, all right। तो जब हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जब x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है, वी हैव x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 वेयर वी हैव n इज नॉट इक्वल टू -1, ऑल राइट। इसके अंदर n-1 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, ऑल राइट। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, दिस इज गोइंग टू बी 3 x की पावर 5/2 प्लस 1 क्या होता है बेटा, 7/2, 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 2 x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 3 x की पावर, व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज गोइंग टू बी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। बच्चा इसको जल्दी जल्दी से मैं फॉरवर्ड, ये 2 वहाँ पे चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 6 x की पावर 7/2 प्लस ये 2 वहाँ पे चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 अगेन इट इज गोइंग टू बी देयर, दिस इज गोइंग टू बी 6/3 x की पावर 3/2 प्लस c। आई होप कि ऑल ऑफ यू नो दैट वेन एवर यू आर हैविंग दिस टाइम ऑफ फॉर्मेट, तो इस वाले को 2 लिख सकते हो, यू कैन जस्ट डिवाइड इट हियर। सो फाइनल आंसर, आई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेप मुझे एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। So this is going to be 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस c। This is going to be the answer in front of you. बच्चा again telling all of you these are very basic problems in exercise 7.1, but yet this exercise is very important considering the very basic part of your understanding of integrals. All right, again we move on to question number 17, and question number 17 क्या कहता है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। सर वो वाली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हट गई जहाँ के अंदर पावर के अंदर प्लस माइनस करना था। अब डायरेक्टली सॉल्व कर दो सर, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो एंड वी हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। एंड व्हाट डू वी हैव टू डू, just have a look here, this is going to be 2 integral of x² dx minus 3 integral of sin x dx plus 5 integral of, I am just writing under root x is x की power 1/2 dx। all right sir, इसको अलग अलग से we are just going to integrate it and we have something in front of us, and how do we solve it, please have a look over here। and this is going to be 2x³ divided by 3 minus sin x का क्या होता था, 3 माइनस ऑफ cos x प्लस 5 x की पावर 3/2 प्लस c। बेटा इसको जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट इन अ सिंपल फॉर्मेट, दिस इज गोइंग टू बी x³ माइनस माइनस गेट प्लस, दिस इज गोइंग टू बी 3 cos x एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये 2 है जो वो ऊपर चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10 x की पावर 3/2 प्लस c। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे जो इंटीग्रेशन के फॉर्म से आएंगे, इंटीग्रेशन के अभी तक हमने आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो इंटीग्रल वाले भी हम डायरेक्ट अप्रोच से एक बार कर लेते हैं, हाउ टू डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 18 is there in front of you, which is saying that integration of sec x multiplied by sec x plus tan x dx। However बच्चा अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है डायरेक्ट वाले, तो वी हैव वन वीडियो विद अस जिसके अंदर से सारे इंडेफिनिट के हमने सारे फॉर्मूलेज, व्हाट ऑल फॉर्मूलेज आर गोइंग टू बी डन
वी हैव जस्ट कवर्ड इन अ वीडियो, एंड आप उसकी लिंक इधर नीचे या ऊपर एक बार देख सकते हो। ऑलराइट, तो दिस इज गोइंग टू बी, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। दिस इज गोइंग टू बी sec square x प्लस sec x tan x dx। अलग अलग कर देते हैं इसको, यस और नो। तो जब हम इसको अलग करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी sec square x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx। बच्चा sec square x का जल्दी से मुझे आप अगर इंटीग्रल बता दोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। sec square का होता है tan x, बिकॉज tan x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है sec square। एंड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर बस एक ही डिफरेंस होता है कि इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव। ऑलराइट, सो बेसिकली तो आई विल गेट अ आंसर, दिस इज गोइंग टू बी tan x प्लस sec x tan x का क्या होता है बच्चे, प्लीज जल्दी बताओ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट इन फ्रंट ऑफ यू। आगे आंसर, ऑलराइट, द आंसर इज गोइंग टू बी sec x plus c। this is going to be the final answer in front of you। I hope अभी तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। we have only few questions to be left to be covered in this exercise। Again, question number 19, what question number 19 is going to say that integration of sec square x upon cos sec square x dx। बच्चा जब भी मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए जिसको मुझे समझ ही ना आ रहा होगा हाउ टू जस्ट प्रोसीड फॉरवर्ड विद दीज क्वेश्चंस, तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू सिंप्लीफाई एंड एनालाइज कि करना क्या है आगे। ऑलराइट, सो अगर मैं इसको करूँगा तो बेटा आपको पता है कि सेक होता है 1/cos और कॉस होता है 1/sin, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा सीधा sin square x upon cos square x dx, एंड आई कैन जस्ट राइट इट एज tan square x dx। और इंटीग्रेशन ऑफ tan square x तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पता है नहीं पता? तो सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर tan square x को करोगे तो मुझे एक चीज़ पता थी, एक फॉर्मूला बहुत इजीली एबल टू नो दैट कि जो tan square x होता है वो sec square x माइनस 1 होता है। आई विल जस्ट राइट इट विद इन फ्रंट ऑफ यू। tan square x होता है सीधा sec square x माइनस 1, तो इसको इसके फॉर्मेट में लिख दो क्योंकि sec square x को करेंगे तो tan x आ जाता है। ऑलराइट, तो जब भी इन द एक्सरसाइज और इन इंटीग्रेशन चैप्टर आपके पास जब भी tan square x आ जाए सिंपली, तो आप उसे हमेशा sec square x माइनस 1 के फॉर्मेट में करोगे। बिकॉज सर ये तो आपने लिख दिया लेकिन ये कैसे आया बच्चा, डू यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी 1 प्लस tan square x इज इक्वल टू sec square x। what I have to do is I have to just take this one onto the right hand side, तो मेरे पास यही वाली चीज़ दोबारा से आ जाएगी। ऑलराइट, आई विल बी टेलिंग यू द वेरी बेसिक्स बिकॉज आई एम जस्ट कंसिडरिंग यू कि आप ये चैप्टर एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर ऑन एक्सरसाइज 7.1। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ sec square x minus 1 dx। सर इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं एंड वी जस्ट गेट टू नो द आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx minus integration of 1 dx। this is going to sec square x का होता है integration of not integration, this is going to be tan x minus x plus c। so this is the answer in front of you। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सर। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है अभी चैप्टर एंड क्लास। जब आप ये बोलोगे ना मैथमेटिक्स इज वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो बच्चा ये आपके ना माइंड के अंदर फिट हो जाएगा कि मैथमेटिक्स इज एक्चुअली वेरी इजी। एंड बच्चा आई मस्ट से दैट मैथमेटिक्स इज एक्चुअली इजी। ऑलराइट, सो नाउ गेट स्टार्टेड। अभी तक आप यही नोट कर रहोगे सर कि आप बार बार बोलोगे इट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। यस, इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट कंसिडरिंग दैट आपको सब कुछ समझ आ रहा है और आप बहुत अंडरस्टैंडिंगली कंसेप्ट को कर रहे हो। ऑलराइट, नाउ गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इट ऑन द स्क्रीन इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऑलराइट बच्चों, इन योर एग्जामिनेशन व्हाट डू वी हैव कंफ्यूजन इज कि dx लगा किसके साथ है सर, ये तो मेंशनड ही नहीं है। राइट, whenever we have something like 2 minus 3 sin x dx divided by 2, ये एक अलग चीज़ है। बट वेन एवर आई एम हैविंग 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 2, बेटा एग्जामिनेशन में आपका जो dx होगा वो इधर लग के आएगा। इसका मतलब ये पूरे के साथ अटैच्ड है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सम ऑफ द टर्म्स। तो मैं इसको फिर से ब्रेक कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता 2 माइनस 3 साइन एक्स क्या होता है।
ऑल राइट, तो आई जस्ट राइट इट एज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑल राइट सर, ये तो हो गया, और कॉस स्क्वायर को अगर अपोजिट करोगे तो आप सेक स्क्वायर आ जाता है। दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3, बेटा साइन और कॉस हो जाएगा 10 और कॉस का क्या हो जाएगा सेक, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx। ऑल राइट, एंड अभी अभी हमने जस्ट किया था, बिकॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दे रखी की थी कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने तो आपको नहीं बताया हुआ, और इन इंटीग्रेशन क्वेश्चन रूल और ये सारे रूल्स भी मैंने आपको नहीं बताया, तो हाउ डू आई गोइंग टू प्रोसीड इट, दिस इज गोइंग टू बी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता था ये होता tan x। ऑल राइट, तो यही वाला कंसेप्ट वी आर गोइंग टू जस्ट अप्लाई इट ओवर हेयर, and what do we have it in front of us is 2 tan x minus 3 sec x plus c। this is going to be the answer in front of us। बच्चा अब इसके बाद आपके जो दो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चन हैं, और वो एमसीक्यू बेस्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एमसीक्यूज फिर उसके अंदर से टिक, हम इसको सॉल्व करते हैं एंड हमारे पास एक्चुअली एमसीक्यू का राइट आंसर आ जाएगा। वी जस्ट लेफ्ट विथ अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस, एंड हमारी भी वीडियो भी अभी ज़्यादा लंबी नहीं हुई, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 36 मिनट्स एंड so let's get started। The next question, that is question number 21, which is there in front of us, is going to be the antiderivative। Antiderivative means the integral only। all right, so integration of under root x plus 1 upon under root x dx। सर इसको कैसे करेंगे, जल्दी से आप मुझे बता दो, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जस्ट थिंक, सोच लिया, सोच लिया, पॉज कर लो वीडियो, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। पॉज कर लिया, एज सुन एज यू आर गोइंग टू जस्ट थिंक अबाउट इट, तो सर आप इसको इसी फॉर्मेट में कर दो ना, ये x क्या था मेरे पास 1/2, और इस वाले को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx। एंड सर आप इसको इंटीग्रेशन कर दो, देखो कब कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल राइट, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी x की पावर 1/2 प्लस 1 dx प्लस डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c। इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट कर लो, दिस इज 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल राइट, ये आपके किसी भी एमसीक्यू के साथ मैच हो रहा होगा। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज। और सी, ये एक्सरसाइज कितनी इजीली कवर अप हो गई, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। क्लास आगे जाके जो आपके कंसेप्ट्स आने वाले हैं, आगे जाके द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू हैव इट, उसके अंदर से यही सारी प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऑल राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट कैसे, f of 2 is equal to 0, then f of x is, बेटा अगर d बाई डी एक्स है तो उस तरफ चले जाएगा तो वो मेरे लिए एक तरीके का इंटीग्रल ही होता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट्स हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस। ये वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो वी आर गोइंग टू जस्ट डू इट इंटीग्रल ऑफ ये वाला पार्ट, ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, यही वाला पार्ट, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ऑल राइट, वेन एवर वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व इट, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं जल्दी से आपको इसका आंसर निकालता हूँ, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, और प्लस क्यू था क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस c। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि f of 2 था मेरे पास 0,
तो प्लीज़ आप मुझे एक बार आंसर बता दो कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, बिकॉज मुझे इसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आप बार बार देख रहे हो कि मेरे पास कांस्टेंट 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 आया जा रहा है, तो आई जस्ट सॉल्व इट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन सो दैट आई डोंट हैव टू इरेज एनी पार्ट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, जस्ट पुट ऑन द वैल्यू कहीं पे भी, दिस इज एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे टू वैल्यू पुट करते चले जाओ। दिस इज गोइंग टू बी टू का टू की पावर फोर प्लस वन अपॉन टू का क्यूब प्लस सी, ऑल राइट। और एफ ये था हमारा जीरो, तो जीरो से आपने इक्वेट करते, दिस इज गोइंग टू बी 16 प्लस वन अपॉन एट प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एंड सी मेरे पास क्या आएगा, अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस वन अपॉन एट। एंड इसको जल्दी से सॉल्व करो, दिस इज गोइंग टू बी वन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस 129 डिवाइडेड बाई एट। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 upon 8. This is going to be the answer in front of you. Class, this is how you have to do integral chapter, and बस यही था. In the very next video, we are going to start with exercise 7.2. Let's get started. And right, by the time, please revise properly. All the very best, और बहुत अच्छे से पढ़ना. All the very best. Thank you, class.